Hello, friends. Uh, Welcome to the first class of the current affairs. Now, in this class, I will discuss about the proper approach to the current affairs and resources and how I'm going to teach you the current affairs. Okay? So this is the our orientation session. This is our orientation session. Now, first of all, if I talk about the current affair classes, so what should be the sources? Now, so current affair, first of all, what you need to know if you are studying the current affairs and if you are thinking like you're going to read the whole current affairs at the end of the month. Okay, so this plan will not going to work properly. Why? If you're going to pick up a magazine at the end of the month, what will be going to happen? There'll be a lot of data. So what should be the right approach, or what is the correct approach? The correct way to tackle the current affair is to go on a daily basis. So for that we have the two newspaper. One newspaper is the Hindu. So the Hindu, this is the first newspaper that you can follow. अगर आप follow कर रहे हैं, well and good. नहीं कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं. The Hindu. So the Hindu is the first newspaper, and talking about the second, it is the Indian Express. Now, what is the difference between the Hindu and Indian Express? Now, the difference is that in Hindu, you're going to have the good editorial. You have going to have the good editorial in the Hindu, and in the Indian Express, there's a column known as the explained section. Explained section. So Hindu का क्या अच्छा है? The editorial of the Hindu is the good. Okay, so there'll be more political point of view. Okay, more philosophical editorial will be there in the Hindu. ठीक, and in the explained section of the Indian Express, there'll be much more important portion of the science and tech. ठीक है, and obviously the language of the Hindu, it is little tougher than the Indian Express, though that is one facet also. So these are the two newspaper, you can follow these newspaper. Apart from that, we have the PIB, that is the Press Information Bureau. So PIB, it is a government site where the government publish the data, okay, on the daily basis. So whatever activities happen in all the ministries of the government, they publish the data there. ठीक है. Next, if you are following some magazine, it is up to you. Okay, so it could be Chronicle, Ghatna Chakra, or any other publication magazine. Okay, now talking about this orientation class, so what I'm going to teach you in this particular class, now I have jotted down some points. Now first point is that PYQ will be your key to PYQ will be our anchors. Now what is the PYQ? If you are if you have some task, okay, or if you are targeting some exam, so what is the key to success for that exam? Uske PYQ. For a particular exam, you only have two things. What two things are you have? One thing is the syllabus of that exam, which is provided by the board, and second thing is the PYQ that is there in the market. So these two things are only authentic sources which is provided by the board. So always remember this thing. Okay, whenever you are approaching the state PCS exam, your key to success is the PYQ. So PYQ you cannot ignore anyhow at any cost. Take. Now next is that there'll be one stop solution for the current affairs. So whatever I'm going to teach you here will be one stop solution. Apart from that, if you want to follow any magazine, it is up to you. Take. Next is the static portion will always hold the key to get to the prelims stage. Now what is the static portion? Now always remember this thing, key, it is not the time that the examiner only going to ask you the current affairs. Okay, no. Why not? Because they're going to ask you the relevant static part of the current affair which is there in the news. So linkage of the current affair with the static part is almost very important. Okay, equally very important. And apart from that, I'm also going to give you the printed notes. So these notes will be print friendly, and you can also print these notes. Okay, and I'll go do the monthly wise coverage. Okay, na? So we'll, just like this month is November. Okay, so I'm going to move October, September, August. इस तरह से move backward. Now without any delay, I'm going to start from the first point. ठीक है, so first point, what is the first point? So these are the bullet points
I'll state the current affairs also, and with the current affairs I'll also state the static part including the current affair. ठीक है. Now the first bullet point is the Sangeet Natak Academy Award. Sangeet Natak Academy Award. Now this award, the Sangeet Natak Academy Award, this award is given to the 4 people. Okay, so this award is awarded to the 4 people. So there are 4 participants, 4 recipients. What are the name? The Ganesh Prasad, Suman Kumar, and Ragveer Malik and Bharat Singh. So these are the 4 people to whom the Sangeet Natak Academy Award was awarded. ठीक है. Next is the Minority Entrepreneurship Scheme. Minority Entrepreneurship Scheme. Now first you need to understand what is the minority. So minorities are those people who are less in the number. Okay. In India we have the 6 religious minorities. Okay, so in India we have the 6 religious minority. For example, you can consider the Jains. ओके, जैन हो गए, सिख्स हो गए, मुस्लिम्स हो गए, ओके, पारसी हो गए. सो दीज आर द माइनॉरिटी. सो माइनॉरिटी का मतलब क्या हो गया? सिंपल, दोज पीपल हु आर लेस इन द नंबर. ओके, नाउ सो माइनॉरिटी एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम. एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स you are training somebody. So minority entrepreneurship scheme. So for this scheme the government is providing the amount of the 10 lakh rupees, okay, to set up the industries. Now this amount will be given into 2 quantities, in the 5 lakh of as a loan and 5 lakh as a grant. Now what is the difference between the loan and grant? Loan is something that you have to repay anyhow. आपको repay करना ही पड़ेगा with some interest also. But grant is something that the government is giving you at free of cost. Okay, so you can consider it, or you can make an analogy as a subsidy. ठीक है, सब्सिडी. तो सब्सिडी कैसी? गवर्नमेंट सब्सिडी देती है ना, फ्री में देती है. ठीक है ना. ना वन थिंग मोर यू नीड टू अंडरस्टैंड इज द DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र. सो पहले क्या होता था, गवर्नमेंट देती थी सब्सिडी टू द रिटेलर. ठीक है, शॉपकीपर को देती थी. नाउ अब क्या हो रहा है, मोदी जी ने कहा था सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे. वो तो नहीं आए, बट जो खाते में 15 लाख रुपए आएंगे तो कैसे आएंगे? विल बी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र. सो वॉट एवर द गवर्नमेंट इज़ गिविंग अमाउंट, कोई आपको पैसा मिल रहा है, स्कॉलरशिप मिल रही है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र. सो सबसे पहले जनधन अकाउंट्स खुलवाया, उन्हीं जनधन अकाउंट में दे आर ट्रांसफरिंग द मनी इन द फॉर्म ऑफ द सब्सिडी. सब्सिडी क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल 2000 रुपये का यूरिया का बोरी, ठीक है ना, पर ये एक्चुअल में इसकी कॉस्ट है 5000. ठीक है, तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, 3000 की सब्सिडी दे दी. तो दिस इज द सब्सिडी. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट स्कीम. नेक्स्ट इज द लूनर कोडेक्स प्रोग्राम. ये प्रोग्राम है, दिस इज द कलेक्शन ऑफ द डिजिटाइज्ड आर्ट टू बी सेंट टू द साउथ पोल ऑफ द मून. ठीक है, यानी कि साउथ पोल ऑफ द मून है, ठीक है, वहाँ पर हम डिजिटाइज्ड आर्ट को सेंड करेंगे. क्लियर? नाउ अबाउट साउथ पोल ऑफ द मून. नाउ साउथ पोल ऑफ द मून, इट इज़ द फार साइड ऑफ द मून. ठीक है, हमारा जो चंद्रयान 3 मिशन गया था, वो यहीं पे गया था, फार साइड ऑफ द मून. ओके, चंद्रयान 3 लैंड जो किया हुआ था. एंड इंडिया हैज़ बिकम द फोर्थ नेशन वर्ल्ड वाइड जो क्या है, मून के साउथ पोल पे गया हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट, वर्ल्ड लार्जेस्ट विंड टर्बाइन, इट इज़ इन दी चाइना. ओके, 16 मेगावाट का वर्ल्ड लार्जेस्ट विंड टर्बाइन है. देखिए, कोई भी चीज़ अगर बहुत लार्जेस्ट है, बहुत टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छी है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ चाइना. सो यू कैन ड्रॉ दी एनालॉजी, यू कैन ड्रॉ सम सॉर्ट ऑफ दी एनालॉजी. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से मैक्सिमम नंबर ऑफ जनधन अकाउंट कहाँ पे ओपन हुए हैं, तो यू कैन रिलेट कि विच स्टेट में, इन विच स्टेट. सो यू कैन रिलेट कि विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम पॉपुलेशन. यूपी विल बी इन द यूपी, है ना. तो टू ड्रॉ दी एनालॉजी, ऐसे करके. Next, this point was very important. This concept of the samosa caucus. This was there in the news recently. Okay, why it was in the news recently? Because PM Modi, he has made a visit in the US, and there he addressed the samosa caucus. So it was there in the news also. ठीक है, क्या था? What is the samosa caucus in the US House, which the PM Modi refers to? So samosa caucus क्या है? They are the Indian origin American. So they are American but of the Indian origin. So we can consider them as the NRI. So they are the NRI in the US Congress. Now what is the US Congress? US Congress is nothing but just the parliament. Okay, in India we have the parliament,
parliament. In India we have the parliament. In the same manner in the US we have the US Congress. तो पार्लियामेंट यूएस की पार्लियामेंट का नाम क्या है? यूएस कांग्रेस. गॉट इट. और उसके भी दो हाउसेज होते हैं. जैसे पार्लियामेंट के हमारे दो हाउसेज होते हैं, उसी तरह यूएस कांग्रेस के दो हाउसेज होते हैं. एक को बोलते हैं सीनेट और एक को बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव. सीनेट इज़ दी अपर हाउस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इज़ दी लोअर हाउस. ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा की तरह ना. है ना, लोकसभा इज़ द लोअर हाउस, राज्यसभा इज़ दी अपर हाउस. नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव अ डिजीज़. मतलब एक डिज़ीज़ के बारे में पढ़ेंगे. नाउ जब भी कोई डिज़ीज़ आती है पढ़ने को, तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए उस डिज़ीज़ के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर वो डिज़ीज़ है तो ये कहाँ से इसका जेनेसिस हुआ. जेनेसिस हुआ यानी कि ओरिजिन हुआ इसका. ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसका वेक्टर क्या है, कैसे फैलती है डिज़ीज़. ठीक है, इसका वेक्टर क्या, कैसे फैलती है. ओके. और उसके बाद कोई हमने टारगेट ईयर लेके रखा है क्या. टारगेट ईयर लेके रखा है ना, कि किस ईयर तक हम इसको ख़त्म कर देंगे या किस कंट्री में इसके केसेस देखे गए. इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इसमें आती. तो इतनी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए रिगार्डिंग द डिजीज़. नाउ द डिजीज़ वी आर टॉकिंग अबाउट हेयर इज़ द ट्राइकोमा डिजीज़. So trachoma disease, it is the disease of the eye. It is a disease of the eye. Okay, and this disease is eliminated by the Iraq. Iraq of Saddam Hussein, remember? So Iraq ने क्या किया है, Iraq has eliminated this disease known as the trachoma. So it is an eye disease. Okay, eye disease, and it is a bacterial disease. कैसी disease है, बैक्टीरिया से फैलती है. ठीक है. Now, apart from this trachoma disease, we have one more disease known as the rubella disease. ठीक है. So rubella disease को किसने eliminate किया है? It is eliminated by the Bhutan and the Timor Leste. Okay, and rubella, it is a viral disease. Rubella is a viral disease, but trachoma, it is a bacterial disease. TB, you can make an analogy. TB. Okay. Now Bhutan, it is a country जो इंडिया को बॉर्डर करती है ना, नदर्न साइड. ओके. एंड तिमोर लेस्ते, ठीक है, ये साउथ ईस्ट एशिया में कंट्री है. ओके, आइलैंड कंट्री है. नेक्स्ट, वन मोर डिजीज़. नाउ अब ये क्या है, दिस इज़ द PYQ. ये क्या है, स्टेट PCS, ये UPSC में पूछा गया PYQ है. व्हाट इज़ द PYQ? DV, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. इससे क्या याद करना है, डेंगू. सो डेंगू, इट इज़ अ वायरल डिजीज़. डेंगू इज़ अ वायरल डिजीज़. नाउ हेयर इट इज़ D and here it is also D. So dengue is spread by the Aedes mosquito. Dengue is spread by the Aedes mosquito and it is a viral disease. Okay, and MP, that is the malaria. Malaria is spread by the parasite and it is spread by the Anopheles mosquito. Okay, now always remember this thing, whenever an insect or especially the mosquito, whenever mosquito sucks your blood, so it is always the female mosquito. हमेशा वो female mosquito होती है that sucks the blood. ठीक है, दिस इज़ वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट इज द क्यूलेक्स मॉस्किटो. क्यूलेक्स मॉस्किटो, इट इज़ अ वेक्टर. एक वेक्टर है भाई. मॉस्किटोज क्या होते हैं, वेक्टर होते हैं. नाउ लेट मी कंप्लीट फर्स्ट द डेफिनेशंस. कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं. फर्स्ट द वेक्टर या कैरियर क्या होता है. लेट्स से देयर आर टू पीपल, दिस पीपल A एंड दिस पीपल B. ठीक है. नाउ दिस पीपल A हैज़ सम सॉर्ट ऑफ फ्लू. इसको कुछ फ्लू होकर रखा है, बीमारी है. ठीक है. अब इसके स्किन पे एक मस्कीटो बैठा और वो मस्कीटो जाके उड़ के गया किसके पास, बी के पास. सो दिस मस्कीटो इज द कैरियर. सो कैरियर वेक्टर इज दैट पर्सन और दैट थिंग विच टेक्स द डिजीज फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस. ठीक है. व्हाट इज द पैथोजन? वट एवर इज कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड इज द पैथोजन. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर इसने स्नीज किया, इसको फ्लू था, इसने छींका कस के, तो कुछ यहाँ पर बैक्टीरिया जाएंगे, यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स जाएंगे और उसकी वजह से इसको क्या हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी. तो ये जो बाहर से आ रहे हैं, वट एवर इज कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड इज द पैथोजन विच इज़ नॉट गुड फॉर यू. नेक्स्ट इज द वायरस. नाउ प्लीज रिमेंबर दिस थिंग दैट वायरस, इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग. वायरस इज नॉट लिविंग थिंग. ठीक. वायरस के जैसे आप बैठे हैं आसपास वायरस घूम रहे हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल. बट अंटिल एंड अनलेस वायरस बिकम एक्टिव ओनली व्हेन इट गॉट अ लिविंग सेल. ठीक है. सो इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे, द वायरस रेप्लिकेट ओनली इनसाइड द लिविंग बॉडी. वायरस इज अ नॉन लिविंग, इट डोंट हैज़ एनी DNA और ओके. वायरस के पास इट डोंट हैज़ एनी DNA. ओके, इट विल रेप्लिकेट ओनली इन द केस व्हेन इट गॉट अ लिविंग सेल. ठीक है. ये हो गया. तो पैथोजेंस के बारे में समझ गए. एंटीबॉडी क्या होती है? Now, one thing is antibody and one thing is the antivirus. Now, एंटीबॉडी क्या होती है? जैसे कोई भी पैथोजन बाहर से आया,
है ना, कोई भी पैथोजन बाहर से आया तो उस पैथोजन को रोकने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। नाउ ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, बॉडी मतलब बॉडी, सो एंटीबॉडी मतलब इनसाइड, इनसाइड द बॉडी, एंटीबॉडी, बॉडी मतलब बॉडी, बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो भी इम्यूनिटी डेवलप हो रही है टू फाइट द वायरस, इट इज़ द एंटीबॉडी। यानी कि एंटीवायरस कहाँ से आता है, वो बाहर से आता है। एंटीबॉडी कहाँ डेवलप होती है, बॉडी के अंदर डेवलप होती है। प्लीज रिमेंबर दिस फैक्ट। सो क्यूलेक्स मॉस्किटो इट इज़ अ वेक्टर, वेक्टर ऑफ विच डिजीज, वेक्टर ऑफ द वेस्ट नाइल वायरस, जापानीज इंसेफेलाइटिस और लिम्फेटिक फेलियारिसिस, और उसके बाद एवियन मलेरिया। इन सारी के लिए क्या है, ये क्यूलेक्स मॉस्किटो हमारा वेक्टर है। नेक्स्ट इज द ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, दिस इज रिलीज बाय द यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज established इन द ईयर 1945 इन दी पेरिस। ठीक है, पेरिस से क्या याद आया हमें, पेरिस से याद आया कि पेरिस ओलंपिक हुए थे अभी, ठीक है ना, पेरिस में ओलंपिक हुए थे, और पेरिस में ओलंपिक हुए थे, पेरिस कहाँ पे, पेरिस फ्रांस में है। ओके, और जो ओलंपिक हुए थे वो एक रिवर के किनारे हुए थे पेरिस में, उसका नाम है साइन रिवर, ठीक है ना, साइन रिवर। साइन रिवर वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली ना, बिकॉज उसकी क्लीनिंग की गई थी बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द पेरिस ओलंपिक, साइन रिवर की क्लीनिंग की गई थी। सो द मेयर ऑफ द फ्रांस ऑफ दैट लोकल साइन रिवर, नियर द लोकल साइन रिवर, शी हैज़ टेकन द प्लेज कि उसको क्लीन करेंगी एंड देन दिल बी कमेंसमेंट ऑफ द ओलंपिक। ठीक है, तो साइन रिवर ये इंपॉर्टेंट है आज अभी के लिए, क्योंकि जो इवेंट्स होते हैं रिसेंट में जो चल रहे हैं वो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। Next, there are two geographical phenomena that were there in the news recently. First is the Fujiwara effect, and next is the atmospheric river. Now, what is the Fujiwara effect? Now, coming together of the two cyclones is known as the Fujiwara effect. So, अगर दो cyclone पास में आ रहे हैं, so this causes the effect known as the Fujiwara effect. And what is the atmospheric river? It is the dense and the low-hanging air currents. Now, one thing I want to tell you here about the ANC and the CNA. What is it? देखिए इसको ध्यान से देते हैं. This is something which is very important. ठीक है. Now cyclone के बारे में I want to give you some information regarding the cyclone, so you can have a clarity. ठीक है. First of all थोड़ी सी cyclone के बारे में बात कर लेते हैं. So cyclone के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे. ठीक है. cyclone. So cyclone जो होते हैं अगर बात की जाए तो बेसिकली दो तरह के cyclone हो सकते हैं. One, it could be the tropical cyclone, or next one is the you can say the extratropical or temperate. ठीक है, what is it? देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, जैसे ये हमारी ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, ये हमने इक्वेटर बना दी, ठीक। अब इस इक्वेटर के ऊपर ये हमारी कैंसर हो गई, दिस इज़ द कैंसर एंड दिस इज़ द कैप्रिकॉन। ओके, नाउ अब ये जो एरिया है, ये एरिया इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया। ओके, ट्रॉपिकल एरिया। तो इस एरिया में जो भी साइक्लोन आएगा वो कौन सा साइक्लोन होगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक। एंड इसके बियॉन्ड जो साइक्लोन आएगा, यहाँ पे कोई आ गया, यहाँ पे हो गया, तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल। और क्योंकि ये टेम्परेट एरिया होता है, हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज दी टेम्परेट, ठीक है। तो ये एक साइक्लोन हो गया। उसके अलावा साइक्लोन के साथ एक और चीज़ होती है, एक होता है साइक्लोन और एक होता है एंटी साइक्लोन, उसका जो ऑपोजिट होता है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे आज, विच इज़ इंपॉर्टेंट। जैसे मान लीजिए कि ये हमारी मदर अर्थ है, ठीक है, एंड मदर अर्थ में ये हमारा इक्वेटर है। नाउ दिस इज़ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस इज द सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर हमें क्या समझना है, यहाँ पे समझना है, सबसे पहले हमें समझना है दो शब्द। फर्स्ट इज़ दी CNA। आपने ANC सुना होगा ना, ANC एंटी नॉइस कैंसिलेशन, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, पर ये एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन नहीं है। ANC और उसके बाद इसी को ऑपोजिट कर देंगे तो CNA बन जाएगा। पहले ANC समझते हैं, ये पहले CNA समझ लेते हैं। CNA का मतलब क्या होता है, C का मतलब होता है साइक्लोन, C का मतलब साइक्लोन, N का मतलब क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और A का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। कहने का मतलब है साइक्लोन्स की क्या होती है, साइक्लोन्स की डायरेक्शन होती है, क्या होती है, डायरेक्शन होती है, ठीक है। अब ये जो साइक्लोन्स की डायरेक्शन जो होती है, बेसिकली ये जो डायरेक्शन होती है ये डिपेंड करती है किस पे, कोरियोलिस फोर्स पे, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, साइक्लोन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एंटी क्लॉकवाइज, और इसका ऑपोजिट कर दो तो अब ये साइक्लोन हो गया, तो साइक्लोन इन द सदर्न हेमिस्फीयर, अब ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो साइक्लोन इन दी
सदर्न हेमिस्फीयर आर क्लॉकवाइज। उसी तरह एंटी साइक्लोन इन द नदर्न हेमिस्फीयर आर क्लॉकवाइज। उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एंटी साइक्लोन इन दी सदर्न हेमिस्फीयर आर एंटी क्लॉकवाइज। तो ये अगर आप इसको समझ गए, बहुत ईजी 4-5 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाएंगे। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, सो बेसिकली देयर वाज अ बैन ऑन द सेक्स चेंज, ओके, एंड द ट्रांसजेंडर मैरिज इन दी रशिया। सो रशिया इज दैट कंट्री जहाँ से हमने S-400 भी खरीदा है, S-500 भी खरीदा है, ठीक है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ओके। एंड थाईलैंड इज द कंट्री जहाँ पर दे हैव अलाउड द सेम सेक्स मैरिज, ओके। सो दीज आर द 2 पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर। नाउ दिस इज द PYQ, यूपीएससी का PYQ है। क्या PYQ था? Basically in the UPSC they have given the 3 countries, Nigeria, Mali and Burkina Faso, and they have asked what is the similarity between these 3 countries. So what was the similarities? Similarities की first of all the African countries थी, though that was the similarity, and apart from that there was a military coup happened. Military coup क्या होता है? coup का मतलब होता है तख्ता पलट। in Hindi coup is known as the तख्ता पलट, ठीक है, तख्ता पलट। यानी कि somehow the डेमोक्रेटिकली, ठीक है ना, डेमोक्रेटिक सेटअप में जो गवर्नमेंट बनी हुई है दैट वाज ओवरथ्रोन बाय द मिलिट्री, है ना। जैसे एज वी हैव सीन इन दी म्यांमार, ठीक है ना, एज वी हैव सीन इन दी म्यांमार द आंग सान सू की, शी हैज़ बिन रिमूव फ्रॉम द पावर, और इन द पाकिस्तान मेनी टाइम्स द मिलिट्री डन सो, ठीक है। सो मिलिट्री coup कहाँ पे हुई है? नाइजीरिया, माली एंड बर्किना फासो। दिस इज द UPSC PYQ। नाउ UPSC ऑलवेज इज अ बेंचमार्क फॉर ऑल द स्टेट PCS, सो वी कैन नॉट इग्नोर इट एनी हाउ, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए विच इज़ इंपॉर्टेंट इज द 13th अमेंडमेंट। नाउ दिस 13th अमेंडमेंट इज नॉट द इंडियन अमेंडमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, रादर देन इट इज़ द श्रीलंकन अमेंडमेंट, ठीक है, श्रीलंकन अमेंडमेंट। सो क्यों समझना है इसको, समझते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल हुआ ये था, what was the story was, so this is the Tamil Nadu. In the Tamil Nadu, in this area, in this fishing ground, lot of the fishermen came here and they do the fishing, ठीक है ना। and slowly they settled in this part, इस part में settled हो गए आके, ठीक है ना। now because they settled in this part, so they become the minority, okay। now अब they are minority, so in Sri Lanka, in the northern hemisphere near the Jaffna Island, there lives a small amount of the people of the Tamil origin, ठीक है। तो इसलिए तमिलनाडु ने क्या किया, इसलिए श्रीलंका ने क्या किया, श्रीलंका ने इंट्रोड्यूस किया 13th अमेंडमेंट। सो इन द 13th अमेंडमेंट इट टॉक्स अबाउट द एम्पावरमेंट ऑफ द तमिल माइनॉरिटीज इन द नॉर्दर्न रीजन, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, इन द 13th अमेंडमेंट दे हैव श्रीलंका ऑल्सो इंट्रोड्यूस तमिल एंड इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम द सिन्हेला। तो अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द सिन्हेला, तो सिन्हेला क्या है? सिन्हेला इट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द श्रीलंका। श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? सिन्हेला। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द तमिल एंड इंग्लिश इज ऑल्सो द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द श्रीलंका, ठीक है। तमिल एंड इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द श्रीलंका अलॉन्ग विद द सिन्हेला भी है और ये भी है, ठीक है। 3 चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। अपार्ट फ्रॉम बात किया जाए यहाँ पर श्रीलंका के बारे में, सो श्रीलंका में समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जिसके लिए डिस्प्यूट चल रहा था, विच वॉज रिसेंटली इन द न्यूज़, इज द कच्छातीपू आइलैंड। सो कच्छातीपू आइलैंड इट इज़ अ डिस्प्यूटेड आइलैंड बिटवीन द इंडिया एंड द श्रीलंका। Kachatipu Island, it is a disputed island between the India and the Sri Lanka, okay, and this island was seceded from India to the Sri Lanka, ठीक है। तो इंडिया ने इसको श्रीलंका को दे दिया था, है ना, एंड अभी इस पर काफ़ी इशू चल रहा है। तो दिस आइलैंड राइट नाउ इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ द श्रीलंका। एंड वन मोर आइलैंड यू नीड टू नो इज द जाफना आइलैंड। सो इट इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ द श्रीलंका, जाफना आइलैंड, ठीक है ना। एंड वी हैव द पल्ग स्टेट। स्टेट क्या होती है? स्टेट इज समथिंग विच कनेक्टिंग द 2 वाटर बॉडीज। तो ये देखो 2 लैंड मास है, दिस लैंड मास ऑफ श्रीलंका एंड इंडिया, एंड दिस इज कनेक्टिंग द वाटर बॉडीज ऑफ द बे ऑफ बंगाल फॉर एग्जाम्पल एंड इंडियन ओशियन, ओके, इंडियन ओशियन और अरेबियन सी यू कैन से, ठीक है। इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है पल्ग स्ट्रेट, एंड देन वी हैव द रामेश्वरम, ठीक है। तो इस सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट वी नीड टू नो इज दी अबाउट दी हम्बनटोटा पोर्ट, ठीक है, हम्बनटोटा पोर्ट। So Hambantota port was there in the news because this port of Sri Lanka, है ना, was captured by the China. So चाइना की जो डेट ट्रैप पॉलिसी है, डेट ट्रैप पॉलिसी, इस पॉलिसी में फंस के ये जो हेमनटोटा पोर्ट है 99 ईयर की लीज पे, ठीक है, 99 ईयर की लीज पे चाइना ने ले लिया था, ठीक है ना। नेक्स्ट थिंग इज आपको पता होगा जैसे होमोसेपियंस के बारे में, दिस इज ऑल्सो UPSC PYQ, ठीक। होमोसेपियंस के बारे में पता होगा, पर अपार्ट फ्रॉम द होमोसेपियंस देयर आर मैनी मोर
ह्यूमन लीनिएज, ठीक है ना। तो यूपीएससी या आपके स्टेट पीसी में पूछा जा सकता है ऐसा कि फॉर एग्जांपल निएंडरथल, इसके बारे में पता होगा निएंडरथल, अपार्ट फ्रॉम दैट डेनिसोरस एंड होमो लोग्नी, ये क्या है, दीज आर द डिफरेंट ह्यूमन लीनिएज, ठीक है ना। नेक्स्ट इज दी अराश गैस फील्ड, अराश गैस फील्ड इट इज़ बिटवीन द कुवैत एंड द ईरान बॉर्डर, ठीक है ना। तो कुवैत और ईरान बॉर्डर के बीच में क्या है, अराश गैस फील्ड, या इसको दोहरा गैस फील्ड भी बोलते हैं। नो प्लीज़ पे अटेंशन, अभी जैसे सम टाइम बिफोर देयर वाज अ रशिया यूक्रेन वॉर वाज हैपनिंग, ठीक है। सो लॉट ऑफ द इन मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन लॉट ऑफ द क्वेश्चन हैज़ कम फ्रॉम द यूक्रेन रीजन, कि यूक्रेन में दोहस्क रीजन कहाँ पे है, या फिर कीव के आसपास का जो एरिया है, ठीक है ना, या कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट, इस तरह की चीज़ें पूछी गई थी वहाँ पर। बट राइट नाउ इफ़ वी सी, क्योंकि वो करंट में थी, और अभी देखा जाए तो करंट में क्या चल रहा है, ईरान और इसराइल का वॉर, तो ये कुछ चीज़ें पूछा जा सकता है, वट एवर इज द न्यूज़, है ना, वो डेफिनेटली आस्क इन द एग्जाम। तो ईरान के बारे में बात किया जाए तो ईरान में कौन कौन से पोर्ट हैं, इंपॉर्टेंट पोर्ट है, फर्स्ट इज द चाबार पोर्ट। दिस चाबार पोर्ट इट इज़ द पोर्ट जिसको इंडिया ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, इंडिया के पास है इसका कस्टडी। नेक्स्ट इज दी बंदर अब्बास पोर्ट इज नियर द चाबार पोर्ट, शहीद बहस्ती पोर्ट, शहीद बहस्ती पोर्ट, एंड विच वन गैस फील्ड इज देयर नोन एज दी फजाद बी गैस फील्ड, फजाद बी गैस फील्ड। सो दीज आर द सम ऑफ द थिंग्स ऑफ दी ईरान, ठीक है ना, ईरान, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं सम नेशनल न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, रोहिणी कमीशन। सो रोहिणी कमीशन दिस इज रिगार्डिंग द सब कैटेगराइजेशन ऑफ द ओबीसी, ओबीसी के सब कैटेगराइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, रोहिणी कमीशन, ओके, ठीक है। एंड इवन राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दी सब कैटेगराइजेशन ऑफ द एससी ऑल्सो, ठीक है। तो एससी में क्रीमी लीडर का जो कॉन्सेप्ट है उसको सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव कर दिया है, उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईपीसी, आईईसी एंड सीआरपीसी। आईपीसी क्या है, इट इज़ द इंडियन पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड, ठीक है ना। ये 1860 में आया था, इसको रिवाइज करके हम लेके आए हैं भारतीय न्याय संहिता। देखो एक है आईपीसी, नेक्स्ट इज द इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, नेक्स्ट इज द क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट, ठीक है। पीनल एक्ट में ये बताया गया है कि कैसे पनिशमेंट देनी है, सीआरपीसी में बताया गया है कि क्या प्रोसीजर होना चाहिए, और इंडियन एविडेंस एक्ट साक्ष्य, यानी कि कैसे एविडेंस मान्य है। सो इंडियन एविडेंस एक्ट इंडियन पीनल कोड वॉज केम इन दी 1860, इसको हमने रीनेम करके कर दिया है भारतीय न्याय संहिता। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 विल बिकम दी भारतीय साक्ष्य संहिता, एंड क्रिमिनल प्रोसीजर को सीआरपीसी हैज बिकम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है। नेक्स्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज ऑल्सो द PYQ, इट इज़ दी डाइक्लोफेनॉक। आपको इनमें से कोई भी शब्द दे सकते हैं एग्जाम में, एंड दे विल आस्क कि व्हाट हाउ इट इज़ रिलेटेड टू व्हाट, ठीक है। सो द टर्म इज द डाइक्लोफेनॉक, एसिटिलोफेनॉक एंड कीटोफेनॉक। ये क्या है, दीज आर द प्रोहिबिटेड ड्रग फॉर द एनिमल यूज़। सो बेसिकली होता क्या था, लेट्स से देयर इज अ मैमल, ओके, कोई भी मैमल है, काऊ है, कोई भी मैमल है, लेट्स से वी आर टेकिंग द काऊ। तो काऊ को क्या करते थे, इफ काऊ हैज़ एनी पेन तो दे गिव द काऊ द पेन किलर ऑफ विच पेन किलर, डाइक्लोफेनॉक, ये पेन किलर देंगे उसको। सो इससे काऊ तो सही हो जाती थी, बट एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द काऊ, जब वो मरती थी, एट दैट टाइम कुछ आसपास के जो लोग, मतलब ऑब्वियसली कुछ जो स्कैवेंजर्स हैं वो आके खा जाएंगे उसको, बट आफ्टर ईटन बाय द स्कैवेंजर्स देयर ऑल्सो रिमेन सम फ्लैश अटैच टू दी बोन्स, और वो धीरे धीरे क्या होता था, वो धीरे धीरे ख़राब होता था, और उसकी वजह से जो एयर आसपास की वो ख़राब होती थी। तो वल्चर्स क्या करते थे, वल्चर्स आर द व्हाट इज़ द वल्चर, वल्चर्स आर दे आर दी स्कैवेंजर्स, दे आर दी स्कैवेंजर्स, ठीक है ना, स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स का मतलब क्या होता है, सो दे आर द स्कैवेंजर्स, यानी कि वो सफाई करते थे, तो लास्ट में जितने भी फ्लैश बचता था वो इसको ही खा लेते थे। बट बिकॉज ऑफ द लार्जर यूज़ ऑफ दिस डाइक्लोफेनॉक, ये डाइक्लोफेनॉक जो होता था, इसका सब्सटीट्यूएंट जो थे वो इनके काऊ के बॉडी में रिमेन हो जाते हैं, एंड देन स्लोली इट एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी ऑफ द वल्चर, क्योंकि वल्चर उसको खा रहा है, ठीक है ना, एंड हेंस दिस बिकम द कॉज ऑफ द डेथ ऑफ द वल्चर्स स्लोली एंड सोली। तो देखो 2003 में कितने थे, 40,000 थे, अभी कितने बचे हैं, 18,000 2015 में, ठीक है। सो इट्स लाइक सम न्यूज़, सम आइटम जैसे डाइक्लोफेनॉक, और उसके बाद एसिलोफेनॉक, एंड उसके बाद निमेसुलाइड, एंड उसके बाद कीटोप्रोफीन। सो दीज आर सम ड्रग्स, ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट इज दी इंडियन बुद्धिस्ट कल्चरल हेरिटेज सेंटर, ये कहाँ पे है, ये नेपाल में है। क्लाउड बर्स्ट, ना
देयर आर सम डेफिनेशंस, कुछ फिनोमिनास थे विच वर देयर इन द न्यूज़ रिसेंटली, आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल क्लाउड बर्स्ट, हीट वेव बहुत न्यूज़ में था, इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्रिटिकल डेफिनेशन विच कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। टॉकिंग अबाउट द व्हाट इज द क्लाउड बर्स्ट, तो क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, अगर 10% एनुअल रेनफॉल हो रही है विद इन 1 ईयर, यानी कि पूरे साल भर में जितनी रेनफॉल होती है उतनी रेनफॉल का 10% सिर्फ 1 घंटे में हो जाए, दिस इज दी क्रिटिकल जियोग्राफिकल डेफिनेशन। ठीक है, एग्जाम में ऐसा आ सकता है, व्हाट इज द डेफिनेशन, मतलब डेफिनेशन ऑफ द क्लाउड ब्लस्ट और क्लाउड बस्ट, नीचे 4 डेफिनेशन दे दी। 2% होता है 1 साल का, 10% होता है 1 साल का, या 2 साल का 5% होता है, कुछ भी करके। ठीक है, सो क्लाउड बस्ट क्या है, इट इज़ द 10% ऑफ द एनुअल रेनफॉल विद इन 1 आवर। ओके, या फिर अपार्ट फ्रॉम दैट रेनफॉल ऑफ द 10 सेंटीमीटर इन 1 आवर इन ऑफ द 10 क्रॉस 10 किलोमीटर। ठीक है, सो दिस इज द क्रिटिकल डेफिनेशन। फिर बात करते हैं हीट वेव क्या होता है। हीट वेव क्या होता है, हीट वेव की अगर बात की जाए तो यहाँ पे इसकी भी डेफिनेशन लिखी, क्रिटिकल डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, 5 और मोर कंजिक्यूटिव डेज ड्यूरिंग विच द डेली मैक्सिमम टेम्परेचर सरपासेस द एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर बाई 5 डिग्री सेल्सियस और मोर। क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि लेट्स से जून या मार्च से बात कर लें, मार्च टू सितंबर का एक टेम्परेचर है, ठीक है ना, उसको बोल दिया हमने एवरेज टेम्परेचर, और उसका एक मैक्सिमम टेम्परेचर है, उसको हमने बोल दिया एवरेज मैक्सिमम। और फिर हम बात करते हैं डे की बात में, सुबह 6 बजे से एक दिन का टेम्परेचर, सुबह 6 बजे से मान लीजिए रात के 6 बजे तक, शाम के 6 बजे तक, ठीक है, या 8 बजे तक, ये कोई टेम्परेचर होगा, तो इसका एक एवरेज टेम्परेचर होगा। अब इसका एवरेज का एक मैक्सिमम भी टेम्परेचर होगा। अब ये क्या बोल रहे हैं कि अगर 5 दिनों तक 5 डेज लगातार, 5 डेज लगातार ये जो डेली एवरेज टेम्परेचर है, ठीक है ना, ये ज़्यादा हो जाए, कितना ज़्यादा हो जाए, 5 डिग्री ज़्यादा हो जाए, किससे, एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर से। ओके, एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर से, देन इट विल बी टर्म्ड एज द हीट वेव। बात समझ गए, देन इट विल बी टर्म्ड एज द हीट वेव। बाकी देयर इज अ क्रिटिकल डेफिनेशन रिटन, यू कैन सी हियर। Apart from that, some news which is very important is the Glacier Lake outburst flow. Glacier Lake outburst flow, सिक्किम में अक्टूबर 2023 में क्या हुआ था, यहाँ पर एक लेक थी, उसका नाम था साउथ लोहनस्क लेक। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ था, बेसिकली ये लेक में बहुत ज़्यादा पानी आ गया था, उसकी वजह से यहाँ पर जो चंगथंग डैम था वो टूट गया था और बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी वहाँ पर। ठीक है ना, मैनी पीपल हैव डाइड। तो बात समझते हैं, व्हाट इज़ द ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लो, होता क्या है बेसिकली। देखिए जैसे यहाँ पर ये ग्लेशियर है, दिस इज द ग्लेशियर स्लोली अगर ये मेल्ट और इस ग्लेशियर ये पिघल रहा है तो ये पानी भरा है यहाँ पर अगर यहाँ पर ये बर्फ़ टूट जाए और बहुत सारा ग्लेशियर इसमें आ जाए तो क्या होगा, दिस वाटर विल ओवरफ्लो फ्रॉम हेयर, है ना, एंड दिस विल कॉज सो मच ऑफ वाटर हेयर, तो फ्लड आ सकता है, फ्लैश फ्लड। जैसे यहाँ पर देखें, ये अगर ये देखो, इसमें नेक्स्ट पिक्चर में क्या हुआ, ये बर्फ़ टूट गई है, पहले यहाँ तक बर्फ़ थी, अभी टूट गई है, तो यानी कि पानी का जो लेवल है वो बढ़ गया, आगे पानी चला जाएगा। दिस इज नोन एज द ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लो। ठीक है ना, तो ये कहाँ पे हुआ था, ये हमने सिक्किम में देखा था, साउथ लोअर्स्ट लेक में। ठीक, अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव दी देपसांग प्लेन, देमचौक प्लेन एंड दौलतबेग ओल्डी। सो ये क्या है, ये दीज आर द प्लेसेस इन दी लद्दाख। ओके, लद्दाख इट इज़ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इंडिया एंड चाइना। नो, इंडिया एंड चाइना की बात किया जाए तो वन थिंग इज़ दी LOC एंड सेकेंड थिंग इज़ दी LAC। LOC क्या होता है, पाकिस्तान के साइड में जो लाइन है उसको बोलते हैं LOC, और चाइना के साइड में जो उसको बोलते हैं LAC। LOC का मतलब होता है लाइन ऑफ कंट्रोल और LAC का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं मैकमोहन लाइन, जैसे यहाँ पर हम देखेंगे। सो दिस इज़ दी LOC एंड ये है क्या, LAC फ्रॉम द साइड ऑफ द चाइना। ठीक है ना, एंड दिस इज़ वॉट शक्शकम वैली। ठीक है ना, दिस एरिया वॉज सेसीडेड टू चाइना बाय पाकिस्तान इन द 1963 में चाइना ने इस एरिया को पाकिस्तान को दे दिया था। ठीक है, और ये हमारा लद्दाख की तरफ है। ठीक है, आगे बात करते हैं, बेंगलोर के बारे में बात करते हैं। सो बेंगलोर क्या है, बेंगलोर में बेसिकली क्यों न्यूज़ में था, बेंगलोर न्यूज़ में था बिकॉज द फर्स्ट इंडियन सिटी टू बिकम द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड सिटी कल्चरल फोरम, वो बेंगलोर है। ठीक है ना, नेक्स्ट इज़ दी कोझिकोडे एंड द ग्वालियर, दे आर द इट इज़ द सिटी ऑफ द म्यूजिक। ठीक है, 2030 में इसको बनाया गया बाय द यूनेस्को। फ्री मूवमेंट regime बिटवीन द इंडिया एंड द म्यांमार। सो इन द इंडियन म्यांमार वी हैव द फ्री मूवमेंट regime। कहने का मतलब क्या है, बिकॉज द बॉर्डर इज पोरस, सो यू डोंट नीड एनी वीज़ा। ठीक है ना, यू कैन ईजिली मूव फ्रॉम हेयर एंड देयर। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टॉक अबाउट द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट द अरुणाचल प्रदेश, तो इन अरुणाचल प्रदेश वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ द ILP, इनर लाइन परमिट।
ठीक ना. सो इनर लाइन परमिट इज़ देयर टू मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ द स्टेट, ताकि कोई भी आगे कंस्ट्रक्शन ना करे, कोई ऐसा ही कुछ भी घुसना है. ठीक है, पता चला वहाँ की पॉपुलेशन, वहाँ की जो डेमोग्राफी उसको ख़राब कर दिया, इसीलिए. ठीक है ना. सो ये म्यांमार और इंडिया के बीच में सारा सिस्टम है. नेक्स्ट वी हैव इज द भारत मंडपम. भारत मंडपम, सो ये क्या था? इट वॉज अ प्लेस, ठीक है, जहाँ पर वी हैव होस्टेड द 18th G20 समिट. एंड दिस 18th G20 समिट जो हुई भारत मंडपम पे हुई. भारत मंडपम इट इज़ अ शेप ऑफ द शंख. किस शेप में है? शंख शेप में है. शंख शेप से याद आया मुझे कि अभी एक ओम शेप का टेम्पल बना हुआ है. ये कहाँ पर बना हुआ है? ये राजस्थान में बना हुआ है. और टेम्पल से मुझे याद आया कि यूएई में अबू धाबी में क्या बना है? अबू धाबी में फर्स्ट लार्जेस्ट टेम्पल ऑफ द अबू धाबी हिंदू टेम्पल. ठीक है ना. उसका नाम क्या है? BAPS टेम्पल. इट इज़ द लार्जेस्ट टेम्पल ऑफ द यूएई. ये पता होना चाहिए आपको. ठीक है. एंड ये जो एग्जीक्यूट किया था, ये बनाया था किसने? बनाया था NBCC ने बनाया था. इट इज़ अ गवर्नमेंट कंपनी. ठीक है, जो आप स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पता होगा NBCC के बारे में. नेक्स्ट इज़ द इंडिया स्टैक. व्हाट इज़ इंडिया स्टैक? आपने लोगो देखा इस इंडिया स्टैक. वॉट एवर डिजिटल एक्टिविटीज़ और डिजिटल इंडिया का जो भी पूरा मिशन है, इट इज़ कंट्रोल्ड, और इसमें जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इट इज़ अंडर द इंडिया स्टैक. सो व्हाट इज़ इंडिया स्टैक? इंडिया स्टैक पता होना चाहिए. इट इज़ एन ओपन एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म और ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस टू फैसिलिटेट द आइडेंटिटी एंड डेटा एंड द पेमेंट सर्विसेज. तो जो भी आइडेंटिटी है, डेटा है, पेमेंट सर्विसेज है, उसको कंट्रोल कौन करता है? इंडिया स्टैक करता है. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तो इंडिया स्टैक के अंदर आता है UPI आता है, eKYC और आधार, ये सारी चीज़ें आएंगी. ओके. नाउ टॉकिंग अबाउट इट, अभी मोदी जी गए थे जैसे फ्रांस में गए थे. ठीक है, तो वहाँ पर उन्होंने आईफिल टावर के नीचे UPI से पेमेंट किया था. तो क्या बाहर, इंडिया के बाहर भी UPI चलता है? यस, चलता है. देयर सम कंट्रीज हु हैव एक्सेप्टेड द UPI ऑफ द इंडिया. For example, who has accepted the UPI of the India, just like Bhutan, France, Malaysia, Nepal, Singapore, and UAE. These countries are the countries who has accepted the UPI. So if you are visiting in these countries, you can easily do the payment via the UPI. Next is the Chandrayaan 3 mission. So Chandrayaan 3 mission was land on the moon surface, on the southern surface of the moon, है ना, far side. ठीक है ना. वहाँ पर लैंड किया था. एट द पॉइंट वेयर इट हैज़ लैंडेड नोन एज द शिव शक्ति पॉइंट. क्या बोलते हैं उसको? शिव शक्ति पॉइंट. और 23 अगस्त को हमने डिक्लेयर किया था नेशनल स्पेस डे बाय द मोदी जी. ठीक है. फर्स्ट टू लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून. तो बेसिकली बात किया जाए, इंडिया इज़ द 4th कंट्री ओवरऑल जिसने साउथ पोल ऑफ द मून में लैंड किया. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से विच इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ दी रंभा एंड चैसैट एंड उसके बाद इल्सा. ये क्या है? दीज आर दी एक्सपेरिमेंट. ये 3 एक्सपेरिमेंट है. ठीक है ना, जो याद रखना है आपने. कुछ भी एग्जाम में पूछ लेगा, आपके एग्जाम में आ जाएगा PCS में कि लिख देगा वहाँ पर कि इल्सा क्या है. ठीक है ना. और उसके बाद चैसैट क्या है, रंभा क्या है, सो पता होना चाहिए. सो इट इज़ द इलेक्ट्रॉन स्टडी. टू डू द स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रॉन वी हैव द रंभा. और उसके बाद चैसैट क्या है? टू थर्मल स्टडी. एंड नेक्स्ट इज द इल्सा. इट इज़ द सेस्मिक स्टडी. सेस्मिक स्टडी मतलब कि द स्टडी ऑफ द अर्थक्वेक. ठीक है ना. फॉर द अर्थक्वेक वी हैव द रिचर स्केल. और ये सेस्मिक एक्टिविटी एक होता है. वन थिंग इज द सेस्मिक एक्टिविटी. ठीक है. तो सेस्मिक एक्टिविटी क्या होती है? सेस्मिक एक्टिविटी इज दैट एक्टिविटी जो अर्थक्वेक कॉज करती है. इसीलिए हमारे पास है सेस्मोग्राफ. तो सेस्मोग्राफ इज दैट ग्राफ. ठीक है ना. दैट ग्राफ इज मेजर्स द एक्टिविटी ऑफ द अर्थक्वेक. ठीक है ना. एंड लेजर स्केल क्या है? लेजर स्केल बताता है अर्थक्वेक की इंटेंसिटी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज द यूरिया गोल्ड. व्हाट इज द यूरिया गोल्ड? ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज यूरिया ओनली. ठीक है ना. अच्छा, यूरिया जो होती है वो नेचुरल गैस से बनती है. इसीलिए जब यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा था, सो देयर वाज द स्कार्सिटी ऑफ द फर्टिलाइजर यूरिया, बिकॉज नेचुरल गैस हम लोग ईरान सबसे, वैसे इंडिया का जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट जहाँ से करता है नेचुरल गैस, इट इज़ कतर. बट रशिया से भी करता है. इट वॉज, तो इस वजह से इशू चल रहे थे. नो टॉकिंग अबाउट द यूरिया, तो अर्लियर देयर वाज ओनली यूरिया. फिर बट हुआ क्या, यूरिया के साथ प्रॉब्लम ये हो गई कि दी गवर्नमेंट इज गिविंग द यूरिया टू द फार्मर्स एट सब्सिडाइज प्राइस. नाउ व्हाट फार्मर्स आर डूइंग, फार्मर्स आर सेलिंग दिस यूरिया टू द इंडस्ट्रीज़. और इंडस्ट्री में यूरिया का यूज़ करते हैं काफ़ी ज़्यादा. ठीक है. इसीलिए गवर्नमेंट लेके आई क्या? नीम कोटेड यूरिया. पर उसमें भी कुछ फ्लॉज थे.
और कुछ फ़ायदे भी थे नीम कोटेड यूरिया के। पहला था कि वो डिज़ोल्व नहीं होती थी जल्दी, यानी कि अगर प्लांट में आपने डाला है तो तुरंत डिज़ोल्व नहीं होगी नीम कोटेड यूरिया, स्लोली होगी, विच इज़ बेनिफिशियल। उसके अलावा और भी बेनिफिशियल थे, इसका इंडस्ट्रियल यूज़ नहीं रोका जा सकता था क्योंकि नीम कोटेड यूरिया को कोई नहीं यूज़ करेगा, ठीक है। बट नाउ वी हैव केम विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द यूरिया गोल्ड। इसमें क्या है, दिस इज द सल्फर कोटेड यूरिया, प्लीज पे अटेंशन, ठीक है ना। एंड इट इज़ मोर एफिशिएंट देन दी नीम कोटेड यूरिया। नेक्स्ट थिंग इज द ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड। ये क्या है, अब आपको ग्रीन हाइड्रोजन बनानी है, सो उसके लिए एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया। व्हाट इज द स्टैंडर्ड ये है कि टू मेक 1 kg ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन, जितनी CO2 इमिट होगी, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन, दिस इज द symbol of not greater than, it should not be greater than 2 kg. So if you are producing the green hydrogen, for that the emission of the CO2 should not be greater than 2 kg, ठीक है। और ये जो इसका जो एक्रीडिशन देता है वो कौन होता है, BEE। ये क्या है, एक्रीडिशन का मतलब होता है फॉर सर्टिफिकेशन, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। बाकी ये टाइप ऑफ हाइड्रोजन है, इसको आप पढ़ लेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट इज दी ODOP क्या है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। बस इसमें इतना पता होना चाहिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम में दैट इट इज़ ऑपरेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट लिम्फेटिक फेलियासिस, अभी बताया ऊपर, ठीक है ना। ये क्या है, इट इज़ अ पैरासिटिक डिजीज़ बाय द क्यूलेक्स मॉस्किटो का सबसे पहला केस कहाँ पे आया था, सबसे पहला केस आया था हमारा केरल में, ठीक है। और इसका एलिमिनेशन का जो टारगेट है इंडिया ने लिया है 2027 तक इंडिया हैज़ टेकन द टारगेट ऑफ टू एलिमिनेट द लिम्फेटिक फेलियासिस। नेक्स्ट इज इट इज़ द NTD क्या होता है, इट इज़ द नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़। व्हाट इज़ द नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़। अगर बात किया जाए, देखो मैंने वही बताया, ये अर्थ है हमारा, दिस इज इक्वेटर, कैंसर एंड कैप्रिकॉन, ठीक। अब ये जो एरिया है पूरा, ये हमारा ट्रॉपिकल एरिया है, तो इस एरिया में बहुत हीट होती है, ह्यूमिडिटी भी बहुत होती है, इसलिए डिजीज़ बहुत होती हैं। अफ्रीका में मैक्सिमम डिजीज़ क्यों होती हैं, बिकॉज इट लाइज इन दी इक्वेटर और ट्रॉपिकल एरिया में। तो उस वजह से जो भी बीमारियाँ ट्रॉपिकल एरिया में होती हैं उस पर लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़। बात समझ गए। एंड लिम्फेटिक फेलियासिस इज़ वन ऑफ देम। नेक्स्ट इज़ दी इंडियाज़ फर्स्ट एग्रीकल्चरल डेटा एक्सचेंज। ये कहाँ पे, हैदराबाद में ओपन किया हुआ है, इंडियाज़ फर्स्ट एग्रीकल्चरल डेटा एक्सचेंज। नेक्स्ट इज दी डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। सो RBI ने लॉन्च किया डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। अपार्ट फ्रॉम दैट RBI जो है ये बना था RBI एक्ट ऑफ 1934 इन द ईयर ऑफ 1 अप्रैल 1935 विद द एक्ट ऑफ 1934। RBI कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, इट इज़ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, फाइनेंशियल इंक्लूजन रिपोर्ट, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, हाउस होल्ड इन्फ्लेशन एक्सपेंडिचर सर्वे, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज one thing is the monetary policy and एक है physical policy. So monetary policy it is the prepared by the RBI. Physical policy ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, निर्मला सीतारमन, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। और RBI जो मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी होती है उसमें 6 मेंबर होते हैं, 3 गवर्नमेंट के साइड से होते हैं, 3 RBI के साइड से होते हैं, ठीक है। ये पता होना चाहिए इसको। नेक्स्ट, और जितना भी रुपए होता है सारा रुपीज़ में जो साइन होता है वो किसमें होता है, नोट में साइन होता है किसका, RBI के गवर्नर का। बट 1 रुपये का जो नोट होता है उसमें जिस किसका साइन होता है, उसमें साइन होता है फाइनेंस मिनिस्टर का, ठीक है। 1 रुपये का नोट याद रखिएगा। नेक्स्ट इज दी वर्ल्ड कॉइन है, इट इज़ अ न्यू करेंसी विच इज़ बेस्ड ऑन द क्रिप्टो करेंसी, है ना, क्रिप्टो टेक्नोलॉजी। एंड इट इज़ प्रिपेयर्ड और इट इज़ मेड बाय द सैम ऑल्टमैन। ये क्या है, एक को फाउंडर हैं, ये वही पर्सन है जिनका चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी किस कंपनी ने बनाया है, ओपन एआई, और ओपन एआई ही सैम ऑल्टमैन की कंपनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज दी 13 महारत्न का स्टेटस दिया गया है इंडियन ऑयल लिमिटेड को। 14 नवरत्न का स्टेटस दिया है ONGC विदेश को मिला है। ये स्टेटस देता कौन है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ये देती है, ठीक है ना। अब किसी भी कंट्री के अगर बात की जाए कि महारत्न बनने का स्टेटस का, ठीक है ना, क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया यह है कि उसकी जो टर्नओवर है वो 25,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, नेट वर्थ उसकी 15,000 करोड़ होना चाहिए, और नेट प्रॉफिट उसका 5,000 करोड़ होना चाहिए लास्ट 3 ईयर का, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट
समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द MSME। तो डेफिनेशन ऑफ द MSME क्या है? देखिए MSME जो है वो 3 पार्ट में आती है, जैसे उसको बोलते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, माइक्रो का मतलब क्या होता है कि आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का है और आपका टर्नओवर है 5 करोड़ का। मीडियम का मतलब इन्वेस्टमेंट आपका 10 करोड़ का है, टर्नओवर है आपका 50 करोड़ का। और उसके स्मॉल का, मीडियम का होता है कि 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर 250 करोड़ का, याद रखिएगा। यानी कि 1 to 5 एंड 10 to 50 एंड 50 to 250, ये चीज़ें पूरी याद होनी चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज दी तीन, आपसे ये नाम दे सकता है एग्जाम में और आपसे ये पूछ सकता है क्या, स्पाइक दे देगा, हेलिना दे देगा, ध्रुवास्त्र दे देगा, पूछेगा क्या है। नाउ इट इज़ दी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ठीक है, ये है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने बताया था आपको जोरावर। जोरावर क्या है? इट इज़ अ लाइट टैंक। जोरावर लाइट टैंक है जो कि इंडिजियसली बिल्ड किया है, किसने? DRDO ने इसको बिल्ड किया है। दिस इज द जोरावर। जोरावर ध्यान रखिएगा, जोरावर क्या है? इट इज़ अ लाइट टैंक। ओके, इट इज़ बिल्ड बाय द DRDO और इसका जो मास है कितना है? 25 टन का है। ये कितना है? 25 टन का। स्पीड कितनी है? 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 70 किलोमीटर पर आवर, 1000 हॉर्स पावर का है ये। ठीक है, याद रखिएगा। और इसके अलावा अगर बात किया जाए, एक हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी लाए थे। व्हाट वाज द स्कीम, व्हाट वाज द प्रोग्राम? इज द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। Integrated Guided Missile Development Program. This program was launched by the Ministry of Defense in the year of 1982. Under this program, we had made a lot of the satellites, lot of the missiles, or actually not satellite. Okay, उसको हमने नाम दिया था पटना, ठीक है ना, या पाटन आप बोल सकते हैं उसको, पाटन। पाटन से P से पृथ्वी, A से अग्नि, T से त्रिशूल, A से आकाश, N से नाग। ये 5 मिसाइल से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये था जोरावर तक का। नाउ बाकी आगे हम बात करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। सो मैंने इसको काफ़ी समराइज्ड वे पे बताया है। ठीक है, पहले हम ऑनलाइन क्लास ले चुके थे, बट दिस इज़ द समराइज्ड वे ऑफ इट। सो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हुई, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दे सकते हैं। ठीक है, एंड द PDF ऑफ दिस क्लास विल बी अवेलेबल इन दी टेलीग्राम। ठीक है, जो टेलीग्राम है हमारा विजाड़ा इसका, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, या फिर जैसा भी होगा आपको बताया जाएगा PDF के बारे में, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद। दिस इज़ मोहित तिवारी साइनिंग ऑफ, थैंक यू।